Guys, so today we will be understanding why the hell TCS, gone down 4% down, even after the great quarterly results, and also this was the annual result, the quarter four is also known as the annual results, So, guys, understand this thing, everyone was knowing that, on 12th of April, the TCS is going to release the results, right? Now, what is happening here is all those people who knew that the next month on 12th of April, the result is going to come, so they started buying, at these levels. Okay, can you see this? This is the accumulation zone. Okay, this is called the accumulation zone. So whosoever, understand this thing, whenever the, market is a very, smart creature, guys. Okay, it doesn't work like what you think about it. आपके सोचने से या आपको क्या लगता है उससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है बॉस। मार्केट ना जो भी अच्छी न्यूज़ होती है उसको पहले से डिस्काउंट कर लेती है, ठीक है। तो दिस इज़ द सेम केस दैट हैज़ हैपन विद दी TCS एज वेल। ओके, यहाँ पे आप देखोगे TCS का जो रिजल्ट था उसके आने से पहले यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन जोन था, ठीक है। पीपल आर एक्चुअली बाइंग, द स्टॉक वाज नॉट गोइंग डाउन, इट वाज नीदर गोइंग अप, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही थी। एंड एज सोन एज द स्टॉक रिजल्ट वॉज कमिंग, द रिजल्ट डेट वॉज कमिंग क्लोजर, कैन यू सी ऑन द लास्ट मंथ ऑफ ऑन द लास्ट डेट ऑफ एक्चुअली मार्च, राइट, nearby 30th and 31st of March, it actually kind of nearby closed above this range. Okay, this range, the entire range, it gave the closing almost, and it was going up, and on the 1st of April onwards it went up. Okay, and the high it had made was 3350. Now, despite having made a huge high, okay, here, now what has happened is, like, I'll be very frank with you guys, like even I was actually long on this stock, okay, since this stock gave the closing up of 3300. Okay, so I actually made the long call, okay, and I was expecting that it will be going above 3400 or 3500. Now, despite this thing, like yesterday the market actually fell down. Now, this was the only reason, why I hit a stop loss of almost 30,000 rupees, in TCS. Okay, and I booked the loss and I exited, because I was knowing that if this thing, if the stock starts going down, right, the next support, okay, it was going to have by this thing, ये जिसका सपोर्ट कह रहा है, तो यहाँ से अगर ये गिरना शुरू होगा तो कम से कम यहाँ पे ऑलमोस्ट इस एरिया तक आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो the previous consolidation area, right, that was now acting as a support. Today also, if you will check it out, the stock has given a huge momentum downside, right, उसके बाद अभी यहाँ पे वीक बन रहा है, तो अभी आज का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। कैन यू सी दिस? there was a huge momentum and right now the market is actually adapting to the situation. तो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, अगर आपको इंट्राडे का ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा के, इफ द कैंडल क्लोजेस बिलो दिस ट्रेंड लाइन, यू कैन जस्ट शॉर्ट इट आउट एंड ऑल दो थिंग्स। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लाइक एक विजन होता है कि स्टॉक में काम कैसे करना है गाइस, ठीक है। तो मैं विजन की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ, कि आपको अगर यहाँ पे काम करना था बॉस, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना था, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है बॉस। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ऑन द 1 आवर ट्रेंड लाइन ऑल्सो इट वाज ब्रीच्ड। ओके, तो मेरा कहीं पे एग्जिट, अगर मैं बताऊँ आपको, कल मैंने कहीं यहीं पे कर दिया था, ठीक है। आई डिड नॉट वेट फॉर दिस ह्यूज कैंडल, बिकॉज इफ आई वुड हैव वेटेड, लाइक आई वुड बी क्रॉसिंग मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ लॉस। ओके गाइज, तो यहाँ पे लाइक आई वॉज हैविंग अ ह्यूज क्वांटिटी टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ओके, फॉर द TCS, ओके, बिकॉज ऑफ दिस बिग ग्रीन कैंडल दैट हैपेंड ऑन द फ्राइडे and it was consolidating, and in the morning also it was giving me profits, but I was expecting something more, but again market actually went sideways and the entire market was into negative sentiment guys, so I choose not to take losses anymore and I exited. okay, तो ये एक ना माइंडसेट होता है गाइस कि आपको किस पॉइंट पे निकलना होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस जोन था, थर्ड टाइम इट एक्चुअली ब्रोक एंड इट वेंट अप। नाउ द सेम रेजिस्टेंस जोन इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट, सो द स्टॉक कैन गो डाउन, इट कैन कम अप, सो यहाँ पे इट विल बी नाउ कंसोलिडेशन फेज। ओके, सो आई एम नॉट गोना बी टेकिंग एनी एंट्रीज हियर, neither short selling, neither buying, nothing at all. Okay, until unless stock gives me a great entry point, then only I'll be going it out. यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो दिस वाज द TCS हाई, ओके, एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी, तो स्टॉक वाज एक्चुअली रिस्पेक्टिंग नॉट ओनली द अप ट्रेंड बट ऑल्सो द डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे स्टॉक एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई जो था इसका इसने तोड़ दिया, वहीं पे ऑलमोस्ट जाके एक रिवर्सल लेके आया, ठीक है। सो TCS, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स से कभी भी मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी स्टॉक में अगर बाइंग होनी होती है ना, तो बहुत ही नीचे के लेवल से बाइंग होनी शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, तो एक हायर लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है गाइज। एंड अगेन देयर वर 2 रीजंस व्हाई द मार्केट फेल्ट येस्टरडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, the results were yet to announce, and of course, like डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
मार्केट में एक साइकोलॉजी के पैटर्न्स काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देख पा रहे होगे तो ये करीबन करीबन डबल टॉप बनाया है मार्केट में, ठीक है। इसके कारण मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में अभी TCS और ऊपर नहीं जाएगा, बट हाँ मैंने जैसे बोला कि ये अभी बाइंग जोन नहीं है मेरे लिए। मेरे को अगर बाई करना है तो मैं करीबन यहाँ पे बाई करूँगा 3000 के एरियाज में। अगर स्टॉक यहाँ पे आता है लुढ़कता लुढ़कता, तो यहाँ से जब इसका एक 30 मिनट्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा मैं डाउन ट्रेंड का, अगर वहाँ से ब्रीच देके प्राइस बनाता है और उसके ऊपर हायर हाई बनाता है तभी मैं बाय करूँगा। और जो कैंडल ने ब्रीच किया उसी के नीचे का लो लगा दूंगा मैं गाइस। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बाय। ओके, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन टेक योर ओन कॉल्स एंड डिसीजंस, बिकॉज एक चीज़ याद रखो, ये डबल टॉप है, ठीक है। तो यहाँ से इसको लुढ़कते लुढ़कते नीचे तो आना ही है, बिकॉज इफ़ यू बाय द स्टॉक इट इज़ नॉट गोना बी इफ़ यू विल बाइंग, तो यहाँ से ऊपर सीधा ही चला जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा है, स्टॉक यहाँ से इसका सपोर्ट हुआ था, ठीक है, और जब यहाँ पे आएगा इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है, ये एक लेट मी जस्ट चेक इट आउट। तो यहाँ पे जब 8 बनाया हुआ, ठीक है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक के रिवर्सल के पैटर्न्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि ये भी अगर यहाँ से लुढ़क गया नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा और नीचे जा सकता है। एंड इफ यू विल चेक इट आउट, इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया गाइस इट इज़ गोइंग टू बी कमिंग नियर बाय दिस एरिया। तो हो सकता है स्टॉक 2800 या 2900 के लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है, ठीक है गाइस। तो मार्केट में हमेशा हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली नेग्लेक्ट ऑल दोज थिंग्स। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट द बाइंग जोन फॉर मी। आई हैव ऑलरेडी बॉट द स्टॉक इन द CNC होल्डिंग फ्रॉम द वेरी लोअर लेवल्स, आई एम स्टिल होल्डिंग इट। बट अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो आपको बाई करना है नियर बाय 3000। ओके, इफ़ द स्टॉक गिव्स यू ऑन अ डाउन ट्रेंड 30 मिनट्स ट्रेंड लाइन ब्रीच द क्लोजिंग अबव दैट, ठीक है। एंड यहाँ पे बाई नहीं करना है, इसके हाई के ऊपर बाई करना है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना तो उसको प्रूव करने दो पहले प्राइस को, ठीक है। और जो कैंडल ने ब्रीच किया उसी कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा गाइस, ठीक है। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा कि किस तरह से काम होता है मार्केट में गाइस। अदरवाइज लाइक बहुत सारे लोग हैं जो लाइक जस्ट एक क्या बोलते तुक्का तीर तुक्का ही काम करते हो, ठीक है। सीखने के ऊपर फोकस करो, ध्यान दो, ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी मेकिंग मनी, अदरवाइज नॉट। तो मैं अगर आपको आज के अपने प्रॉफिट्स दिखा दूँ, यू कैन सी दिस आउट, these are the today's profits. And again if I will be showing you like the order book, you can just check it out at 915 916 918 918 like here entire profits were booked. This 34k was booked in just 4 minutes guys. Okay, because I was already expecting that the market is going to open gap up because of the technical things and also the market behavior actually, which is the most important point here, the psychological factors. तो अगर आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता लगता है यार तो पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनीवेज, तो ये मेरा ही अकाउंट है सामरिया कॉर्पोरेट, यू कैन चेक इट आउट, दिस इज माय अकाउंट। सो अगेन गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो एंड आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स कि भाई आपको काम कैसे करना है, मार्केट में साइकोलॉजी कहाँ पे रहती है, ठीक है। दैट इज इट गाइस। एंड DLF ऑल्सो इट वॉज अ स्कैल्पिंग ट्रेड। ओके, आई टुक द ट्रेड, इफ यू विल चेक इट आउट, I took the trade at 13 and I exited at 14.38, ठीक है। So this was a very brisk momentum trade, okay, that I took and I had a huge quantities here, you can see। तो स्कैल्पिंग भी होती है कभी कभी। तो अगेन आपको देखना होगा कि यहाँ पे इसका हाई जो था 15 का था, ठीक है। तो मैं आपको अगर अपना ऑर्डर बुक दिखाऊँ, कैन यू सी दिस आउट, 15 का हाई था मेरा यहाँ पे, फिर 14.2 का था, फिर 13.95 का था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो जितने भी 3 ऑर्डर लिए थे इकट्ठे 13.10 के ऊपर, सभी को थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट बुकिंग एज वेल, ओके, इन द मार्केट सेंटीमेंट। क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है ना ये नीचे भी एकदम से गिर रहा है और ऊपर भी एकदम से जा रहा है। तो आपको सिर्फ स्कैल्पिंग के ऊपर ही काम करना है गाइस, ठीक है। अभी कोई भी होल्डिंग वाली चीज़ नहीं है, जब आएगी, जब उसका टाइम आएगा, आई विल ऑफ कोर्स लेट यू नो, बट राइट नाउ इट इज़ ओनली फॉर द टाइम हु आर एक्चुअली ब्रिस्क वन, ओके। जिसके हाथों में ताजगी है, जिसके हाथों में तेज़ी है, वही काम कर पाएगा मार्केट में, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है गाइस। सो दिस इज इट इन दिस टुडेज वीडियो। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड like, subscribe, and if you want to learn you can enroll in the next batch. I'll be providing you the link in the description below, and please watch the 9 PM series guys of mine. I'll be starting it out very soon. So tab tak ke liye shabba khair, bye bye guys, thank you.